I would request Yog Mahadev to introduce our session chair, Professor Prafulla Mishra, and also he will do the job inviting the presenters to present their papers. So I invite Yog Mahadev from Guyana to introduce our chair of the first session, Professor Mishra. Yog Mahadev. Namaste, one and all. Thank you, Dr. Arya. Respected Professor Dr. Ravi Prakash Arya, Vedic scholar, Maharishi Swami Dayanand Saraswati Chair at the Maharishi Dayanand University, Dr. Sharman, honorable and respected guest, and of course, every single one of our honorable, respected guests joining this international seminar today. What an honor it is to join this international seminar on the Satyar Prakash and other texts of the Maharishi in contemporary education and practices. And what an honor it is to sit, although in a virtual gathering, but to sit with each and every one of you under the umbrella of the Maharishi Dayanand. Brothers and sisters, in performing my very simple task, let me first thank Professor Ravi for accommodating and having me here, and his team for putting together such hard work to make sure that today is possible. As we would say in English, all hail and all praise, of course, to the Maharishi and his inspiration. Brothers and sisters, our chairman for this session is no other than Professor Prafulla Kumar Mishra, who was a professor of Sanskrit in the postgraduate department of Sanskrit, Utkal University in Odisha. Professor Mishra is a successful academician and an administrator par excellence. He is an insightful researcher and a prolific writer. He has authored many books and research papers in various fields, including Sanskrit language, literature, different aspects of Indology, yogic science, naturopathy, research methodology, Jagannatha culture, and so on. Our professor, who is going to chair the session, he has served as a director of the National Mission for Manuscripts, and his direct influence on people's lives are well known. And as many as 28 research scholars have completed their doctoral thesis under his able supervision. And he has also guided 50 or more MPhil students along their path. Professor Mishra has received many awards, both national and international awards and honors that has recognized his great contributions. A former vice chancellor of North Odisha University, Professor Mishra is currently posted as the chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Agricultural Central University in Bihar. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it is with pleasure and honor that I make this introduction and hand you over to the capable hands of our dear Professor Prafulla Mishra. Now you can also invite the different paper presenters if you have got the schedule of the conference. Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannataya Nam. It's a great pleasure in these international gatherings, virtual gatherings, that we are all talking of Swami Dayananda's philosophy and teaching and his method, research methodology, and the scholars are ready to present their papers. Swamno medhe prathama गोभिरश्वे धिरागहि त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः त्वं असि यज्ञिया। प्रकृत अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन निकर और अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी महानुभावों को मैं प्रज्ञा नमन करते हुए अपने विषय सत्यार्थ प्रकाश के अध्यापन के संभावित क्षेत्र के साथ उपस्थित हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की वैज्ञानिक, तार्किक, दार्शनिक और युगातिक्रांत श्रीमुषी का लाभ न केवल तत्कालीन समाज को उदात्त रूप में प्राप्त हुआ, अपितु
उनके ग्रंथों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा और समाज में भी अपेक्षित है। वर्तमान समाज में अनेक समस्याएं तीव्र रूप से व्याप्त हो रही हैं और ऋषि दयानंद के ग्रंथ इन समस्याओं का समाधान करने में सहज रूप से समर्थ है। इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण है ऋषि दयानंद की प्रखर मेधा और दूसरा कारण यह है कि उनका न केवल वैदिक अध्ययन अपितु इससे इतर सभी पक्षों में अध्ययन अत्यंत व्यापक रहा है और इसका लाभ ये हुआ कि अपने इस अध्ययन का नवनीत उन्होंने अपने ग्रंथों में उपलब्ध करवाया। अपने अध्ययन से समाज के सर्वाधिक हितकारी पक्षों को और सर्वाधिक उन्नत करने वाले पक्षों को उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। इसलिए वर्तमान शिक्षा जगत में ऋषि दयानंद के ग्रंथों का अथवा ग्रंथांशों का समायोजन अपेक्षित है। Sir, voice is not clear. Can it be made clear? प्रकृति शोध पत्र स्वामी दयानंद सरस्वती के अन्यतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर केंद्रित है। यदि समग्र रूप में देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का दर्शन ऐसा समग्र पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा सकता है और इस दर्शन का अपना वैशिष्ट्य है। जैसे यदि हम तत्व मीमांसा में देखते हैं तो त्रैतवाद, सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि का प्रारंभ और आत्मा के स्वरूप में आत्मा का अणुपरिमाण, आत्मा के अणुपरिमाण की स्वीकार्यता, ऐसे अनेक दार्शनिक पक्ष हैं जिनको हम लेकर एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे वेदों के भाष्यकारों के विभिन्न भाष्यों को पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार ऋषि दयानंद के भाष्य। किंतु प्रशासनिक दृष्टि से प्रारंभिक रूप में विभिन्न ग्रंथांशों का समायोजन करना अधिक सुकर है। इस सौकर्य की दृष्टि से यदि हम ग्रंथांशों पर विचार करें और सत्यार्थ प्रकाश को देखें, हम ये पाते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के विभिन्न प्रश्न पत्रों के विभिन्न बिंदुओं में इन ग्रंथांशों का समायोजन हम कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग में हम देखें तो एमफिल पीएचडी के कोर्स वर्क में बहुत सारे प्रश्न पत्रों में कई बिंदु पढ़ाए जाते हैं, जैसे चतुराश्रम व्यवस्था, वैदिककालीन समाज, ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जीव ईश्वर का संबंध भेद। इन सभी में हम सत्यार्थ प्रकाश के विभिन्न समुल्लासों का उद्धरण, उनकी विस्तृत व्याख्या, उसका तार्किक और समीक्षात्मक पक्ष रख सकते हैं। जैसे यदि चतुराश्रम व्यवस्था में हम देखें तो हम पंचम समुल्लास वानप्रस्थ और संन्यास विषयक है। इसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप में सप्तम और प्रथम समुल्लास, जीव के स्वरूप और जीव और ईश्वर का संबंध, विशेष रूप से ऋषि दयानंद के मत में भेद रूप संबंध, इसमें हम सप्तम और नवम समुल्लास रख सकते हैं। इसी प्रकार सृष्टि प्रक्रिया, जिसमें ऋषि दयानंद का अपना एक वैचारिक वैशिष्ट्य है, इसमें हम अष्टम समुल्लास के कुछ अंश और उनका समीक्षात्मक पक्ष की दर्शन की दृष्टि से ये कितना संगत है, इस प्रकार रख सकते हैं। इसी प्रकार अविद्या, जो कि बंधन का हेतु है, बंधन का स्वरूप, मोक्ष, मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष प्राप्ति के साधन, इस रूप में हम नवम समुल्लास रख सकते हैं। यदि हम संस्कृत विषय से इतर विषयों को देखें तो दर्शन विषय में एक वाद प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है। कुछ विश्वविद्यालयों में संस्कृत में, कुछ विश्वविद्यालयों में दर्शन विषय में। वाद प्रश्न पत्र के माध्यम से विद्यार्थी ये सीखते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा किस प्रकार खंडन मंडन शैली से पोषित और विकसित होती आई है। न्याय शास्त्र में तर्क प्रधान शैली से वाद प्रक्रिया को समझाया गया है और इसका अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग हमें सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समुल्लासों में दृष्टिगोचर होता है। समुल्लास संख्या 11, 12, 13 और 14 न केवल वाद प्रक्रिया को समझने के लिए कि किस प्रकार से खंडन शैली तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत की जाती है यह अपेक्षित है, अपितु भिन्न भिन्न दर्शनों का खंडन यहाँ उपस्थित होने से उन दर्शनों के प्रश्न पत्रों में भी
इन खंडनों के स्वरूप ये समुल्लास रखे जाने अपेक्षित है, ताकि विद्यार्थी इन दर्शनों के पूर्व पक्षों को ठीक प्रकार से समझ सके। दर्शन से अतिरिक्त यदि विषय हम देखें तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में नीति शास्त्र संस्कृत में भी, दर्शन में भी और अन्य कुछ विषयों में भी पढ़ाया जाता है। नीति शास्त्र इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न पत्र के रूप में भी है। इसके लिए हम दशम समुल्लास का आचार अनाचार प्रकरण रख सकते हैं। इसी प्रकार गृह विज्ञान विषय में भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों के गुण, संतुलित भोज्य पदार्थ, उनके दोष और उनका ग्रहण अग्रहण, ये विषय पढ़ाए जाते हैं विद्यालय स्तर पर, स्नातक स्तर पर, परास्नातक स्तर पर, और इनमें शोध कार्य भी होते हैं। इस विषय में हम सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास का भक्ष्य अभक्ष्य प्रसंग भी उपस्थित कर सकते हैं। न केवल सत्यार्थ प्रकाश अपितु ऋषि दयानंद के अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो अर्थव्यवस्था से संबद्ध हैं, समाज की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाता है इस रूप में संबंधित है, और विशुद्ध रूप से शैक्षिक जगत से भी संबंधित है। इन ग्रंथांशों के संयोजन से हम अधिक उन्नत शिक्षा प्रणाली, अधिक उन्नत समाज और अधिक उन्नत नागरिकों को बनाने में सहजता से सफल हो सकते हैं। प्रज्ञा, अब तुम्हारा समय हो गया है, 10 मिनट का ही है। अब तुम इसे ये मेरा निष्कर्ष वाक्य ही था। और समग्र शिक्षण प्रक्रिया को हम, जो कि बीएड शिक्षा शास्त्र किया जाता है, उसमें ऋषि दयानंद की शिक्षण पद्धति इस रूप में भी रख सकते हैं। और यदि ग्रंथांश के रूप में देखें तो सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास अध्ययन अध्यापन से संबद्ध है। इस शिक्षण पद्धति के रूप में भी इसे रखा जा सकता है। धन्यवाद। Now I will like to request Dr. Hema L. Solanki, स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक दर्शन। नमस्कार सभी विद्वानों से। क्या मैं मेरी पीपीटी प्रेजेंट कर सकूंगी? हाँ, अब आया है। हाँ जी, सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। मैं हेमा सोलंकी गुजरात से एनएस पटेल आर्ट्स कॉलेज में संस्कृत की अध्यापिका हूँ। मेरा आज का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक दर्शन की वर्तमान समय में उपादेयता। मनुष्य के जन्म होने के साथ उसके जीवन में कोई निश्चित ध्येय नहीं होता, परंतु कुटुंब, समाज, देश उसे जीवन का ध्येय प्रदान करने में सहायक बनते हैं। इन संस्थाओं से प्राप्त नानाविध जीवन अनुभव ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। इन सभी में शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की प्राचीन शिक्षण परंपरा में गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था थी। उसके बाद भी विविध प्राचीन विद्यापीठों की शिक्षण परंपरा से भारत की सुवास विश्व में फैली हुई थी, परंतु कालक्रम से हमारे देश पर होने वाले विविध आक्रमण और व्यापार के प्रयोजन से आई प्रजा ने, खासकर अंग्रेजों ने, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और खास शिक्षण को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने सकारण हमारे देश में औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत की। यह नीति अनुचित लगने पर कुछ सुधारावादी मानस के लोगों में सुधारावाद यानी कि रिफॉर्मिज्म के बीज का आरोपण हुआ। इस बीज ने जन्म दिया सामाजिक सुधारकों और चिंतकों को, जिनमें महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, कृष्णमूर्ति आदि चिंतक समाविष्ट है। वेद के प्रति पुनः लौट चलो, यह नारा जैसे कि उनका जीवन मंत्र था। वेद के समुचित ज्ञान से जिन्होंने क्रियाकांडों में जकड़े हुए भारतीय मानस को मुक्त करवाया और धर्म की सच्ची विभावना को प्रकट करने वाले स्वामी श्री दयानंद सरस्वती, संस्कृत शास्त्रों की परंपरा से प्राप्त उनकी चेतना का विकास सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक ऐसी 3 धाराओं में हुआ। उस समय अंग्रेजी शिक्षण से प्रभावित युवान को स्व के प्रति जागरूक कर उसे भौतिकवाद से बचाना ही उनका मुख्य ध्येय था। भारतीय परंपरागत शिक्षण प्राप्त करने के कारण उन अनेक शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया। इतना ही नहीं, इन शास्त्रों को जीवन के पथदर्शक के रूप में प्रस्थापित किया।
दयानंद सरस्वती जी के शिक्षण चिंतन का प्रारंभ ईस्वी सन 1863 में हुआ और ईस्वी सन 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई तब उनके चिंतन का विकास हुआ। स्वामी जी ने स्व की प्राप्ति और धर्म पालन ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माने हैं। आत्मविद्या को उजागर करने को ही उन्होंने विद्या कहा है। प्रवर्तमान समय का युवा धन संपूर्णतया सोशल मीडिया से घिरा हुआ है। ज्यादातर युवा युवतियों की रुचि अभ्यास के प्रति कम होती जा रही है। समाज में सतत मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में युवाओं में इन गुणों का स्थापन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश हर एक युग में एक मार्गदर्शिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय एवं तृतीय उल्लास में विद्या प्राप्ति के संपूर्ण विधि को उपलब्ध करवाया है। अतः सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास का प्रारंभ ही अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः से होता है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बालक माता पिता और सच्चे गुरु प्राप्त होने पर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कर यथार्थ रूप से ज्ञानी हो सकता है। संस्कारों का महत्व अंकित करते हुए स्वामी जी ने गर्भाधान संस्कार से ही बालक के शिक्षण का प्रारंभ किया है, क्योंकि संस्कार मनुष्य के दोषों को दूर कर उनमें गुणाधान करते हैं, उनका विमलीकरण करते हैं। माता पिता द्वारा बीज एवं क्षेत्र की शुद्धि के लिए यह संस्कार किया जाता है। गर्भाधान का पूर्ण प्रभाव संतान के मन, बुद्धि, चित्त तथा हृदय पर होता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में जब हमारे शास्त्रों में बताए संस्कारों का चलन कम हो रहा है, ऐसे समय में इस संस्कार का पालन करने से पति पत्नी एक उत्तम संतान की प्राप्ति कर उसे उत्तम मनुष्य बना सकते हैं। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस ने भी इस संस्कार का स्वीकार किया है। जन्म के पश्चात भी बालक के लिए उत्तम भोजन और पेय पदार्थों का निर्देश किया है। इस तरह उत्पन्न बालक उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। हमारे शास्त्र योग्य खान पान एवं विहार के ज्ञान से समृद्ध है। यहाँ पर मातृमान का अर्थ ऐसा किया है, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, अर्थात जिस बालक की माता प्रशस्त एवं धार्मिक हो ऐसा बालक। माता को सर्वप्रथम गुरु माना है। माता अपने बालक को बालपन से ही निरंतर ऐसी शिक्षा दे कि जिससे बालक कोई वाचिक एवं अंग की कुचेष्टा भी न करे। बालक बोलने लगे तब से माता उसे शुद्ध उच्चारण करवाए। 5 वर्ष की आयु से सर्वप्रथम देवनागरी का अभ्यास कराए, तत्पश्चात अन्य भाषाओं का। अन्य के साथ कैसे वर्तन करना है इस बात की शिक्षा के लिए श्लोक, गद्य, सूत्र आदि कंठस्थ करना चाहिए। जन्म के 5 वर्ष तक माता और 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा दे। बालक 8 साल का होने पर विद्वान एवं विदुषी शिक्षकों के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजने का निर्देश है। बालक को लाड़न करने वाले उसे विष और ताड़न करने वाले उसे अमृत प्रदान करते हैं, क्योंकि ताड़न गुणदायी माना है। किसी भी प्रकार के द्वेष रहित होकर भीतर कृपायुक्त होकर ताड़न करना लाभदायी है। मैं मुख्य पॉइंट इस तृतीय समुल्लास में निर्दिष्ट प्रारंभिक शिक्षण। तृतीय समुल्लास में स्वामी जी ने अध्ययन अध्यापन के विषयों एवं विधियों का विस्तृत आलेखन किया है। स्वामी जी का निर्देश है कि 8 साल की आयु में ही बालक एवं बालिका को पाठशाला अर्थात गुरुकुल में भेज दिया जाए। पाठशाला का स्थान कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पाठशाला ग्राम या नगर से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर हो, अर्थात एकांत स्थान में हो। शहर और गांव से दूर पाठशाला का प्रयोजन है कि वह गलत सामाजिक जूथों और राजकीय जूथों के दबाव से मुक्त रहे और पढ़ाई के लिए एकांत शांत स्थान की प्राप्ति हो। सह शिक्षण का स्वामी जी ने निषेध किया है। आचार्य जी ने बालक बालिका के सह शिक्षण का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। उनके मतानुसार स्त्री पुरुष की पाठशालाएं एक दूसरे से 2 कोस की दूरी पर हो तथा बालकों की शाला में पुरुष शिक्षक एवं बालिकाओं की शाला में स्त्री शिक्षिका हो। इस निषेध का आशय विद्यार्थी को मात्र। हाँ जी डॉक्टर हेमा जी, अब आप कंक्लूड करें। हाँ जी, तो सह शिक्षण का निषेध है। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व
स्वामी जी ने दिखाया है। ब्रह्मचर्य वो 3 प्रकार के उन्होंने दिखाए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। और 8 प्रकार के मैथुन न करे, जैसे कि परस्पर विजातीय व्यक्ति का स्मरण न करे, जो अभी आधुनिक समय में भी अगर ब्रह्मचारी हम उसे कहते हैं कि जो अभी पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी है, तो वो बालक भी अगर इसका पालन करे तो शायद समाज एक उत्तम नागरिक की प्राप्ति कर सकता है। और बाद में उन्होंने जो अध्यापन के जो विषय है, शिक्षा, व्याकरण आदि, और साथ ही साथ में जैसे अभी की शिक्षा नीति में जो अलग अलग प्रकार के इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज भी बालक को सिखाए जाए, वो सभी प्रकार के पाठन के विषय स्वामी जी ने किस प्रकार पढ़ाए जाए, उसकी पूरी विधि इस दूसरे और तीसरे समोल्लास में स्वामी जी ने बताई है। मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति में भी कुछ विचार हमने जो रखे हैं, वो इतने साल पहले स्वामी जी ने शिक्षण के सिद्धांतों का जो रखे, वो हम थोड़ा बहुत भी पालन कर ले तो उनको सार्थक अंजलि हम प्रदान कर सकेंगे। Now I like to say, request अनामिका, शिक्षा पद्धति का व्यावहारिक पक्ष। अनामिका। सभी को सादर नमन। प्रोफेसर रवि जी को विशेष धन्यवाद कि महान विद्वानों और विद्वत जनों में मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? क्लियर? Carry on. मैं आर्य स्कूल में पढ़ी हूँ और उसके बाद DAV कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो मेरा शुरू से ही ये चिंतन चलता आ रहा है कि जो क्रांतिकारी विचार हमें पढ़ाए जाते हैं, उनको व्यवहारिक रूप से हम कैसे सामने लाएं। मुझे आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती ही यही लगी कि अगर हम चर्चाएं करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में मैंने ये शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कोई क्षमा हो तो, कोई त्रुटि रहे तो क्षमा कीजिए। किसी भी राष्ट्र को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका को दयानंद भली भांति जानते थे। इसीलिए अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में, जहां उन्होंने ईश वर्णन की चर्चा की है, द्वितीय ही समोल्लास में उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में भारतीयता का पुट समाहित करना, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की जो धारा उन्होंने प्रवाहित की, उसमें राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी नवीन चेतना का संचार किया। शिक्षा के सैद्धांतिक रूप के साथ साथ उन्होंने छात्रों को जीवन उपयोगी ज्ञान देने के लिए व्यवहारिक शिक्षा संबंधी पुस्तकों, ग्रंथों की भी रचना की। उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि ग्रहण की हुई शिक्षा जब तक व्यवहारिक रूप धारण नहीं करेगी, तब तक शिक्षा मात्र एक औपचारिकता है। पठन पाठन व्यवस्था के संदर्भ में दयानंद जी की तृतीय पुस्तक व्यवहार भानु की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट उद्घोष किया है कि इसको रचने का मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि इससे प्रेरित होकर मनुष्य स्वयं का, अपनी संतान का और विद्यार्थियों का आचरण उत्तम कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य स्वयं भी सुखी रहेगा, संतान एवं विद्यार्थी भी सुखी रहेंगे। इस लघु पुस्तिका में प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्य के लिए उपयोगी व्यवहारों एवं शिष्टाचारों की शिक्षा दी गई है। मेरा ये शोध पत्र विशेष रूप से व्यवहार भानु के संदर्भ में ही है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए दयानंद जी लिखते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़कर सदा आनंदित रह सके, वह शिक्षा है। अद्यतन समस्या ही यही है कि शिक्षा में आनंद कैसे ढूंढा जाए। अद्यतन जो युवा वर्ग जो है वो बिल्कुल व्यवसायिक दृष्टि से शिक्षा को देखता है।
उन्होंने शिक्षा को एक निश्चित आयु मात्र से ना जोड़कर जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया माना है। दयानंद जी के अनुसार सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना चाहिए, इसलिए ये बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के लिए मैं व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान करता हूँ। वास्तविक रूप में शिक्षित मानव भी वही है जिसका शिक्षित होना उसके व्यवहार से दृष्टिगोचर हो। दयानंद जी ने विद्या ग्रहण के चारों प्रकारों का उल्लेख करके अंततः व्यवहार में प्रदर्शित करने को ही विद्या की परिणति माना है। व्यवहार काल के विषय में लिखते हुए कहते हैं कि व्यवहार काल उसको कहते हैं जब अपनी आत्मा में सत्य विद्या होती है, तब यह करना और ये ना करना, और वैसे ही ठीक ठीक हम सिद्ध होकर वैसे आचरण कर सकें, और इस काल को उन्होंने सर्वोपरि माना। स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, मैं इस बात पे विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी, शोध छात्रा के साथ साथ मैं एक प्राध्यापिका भी हूं, कि केवल विद्यार्थियों के लिए ही तप नहीं, बल्कि इसको प्रदान करने वाले आचार्यों से भी वो उतने ही कठोर तप की अपेक्षा रखते थे। आचार्य के गुणों पर प्रकाश डालते हुए दयानंद जी लिखते हैं, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम सहित धर्म युक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या देने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे, वह आचार्य है। और निरुक्त से भी आचार्य की परिभाषा उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है, आचार्य आचार्यम गृह्यति। आचार्य इसलिए आचार्य कहलाता है क्योंकि वह छात्रों को आचरण का पाठ पढ़ाता है। इसके अतिरिक्त दयानंद के अनुसार विद्या द्वारा यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर, यहां मैं यथार्थ ज्ञान पर सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर यथा योग्य व्यवहार करने कराने से आप और दूसरों को आनंद युक्त करना, यही विद्या का फल है। क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। यहाँ पर विद्या से सुख की प्राप्ति है, लेकिन आजकल जो बिल्कुल गला काट कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक से ऊपर होने की विद्यार्थियों में, ये चिंता का विषय है। और दूसरी बात, आचार्य किस प्रकार से विद्या और सुशिक्षा को विद्यार्थियों को ग्रहण करवाए, इसका उत्तर देखिए क्या देते हैं। आचार्य समाहित होकर, पहले आचार्य को समाहित होना पड़ेगा, इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करवाए जिससे विद्यार्थी की आत्मा के भीतर तक अर्थ सुनिश्चित हो जाए, उसका उत्साह बढ़े, और वो ऐसी चेष्टा कभी ना कर पाए कि जिसको देखकर वो विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जाए। उसकी आत्मा इतनी पवित्र करने की बात कही है। मेरे पास 3 मिनट का ही समय है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जीवन में सफलता हेतु परिश्रम का महत्व दर्शाते हुए दयानंद जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये मैं आज के लिए कह रही हूं, कि कर्म ही मनोरथ पूर्ति का उत्तम साधन है। परिश्रम का महत्व दर्शाया है ऋषि ने कि कर्म ही मनोरथ पूर्ति का उत्तम साधन है। इसके विपरीत जो पदार्थों की प्राप्ति में उत्साह दिखाता है, उस मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। अतः अगर कुछ प्राप्त करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक मैं यहाँ पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगी, सभा में हमें किस प्रकार जाना चाहिए, इस पर भी वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि सभा में जाएं तो दृढ़ निश्चय करके कि मैं सत्य को जीत लूंगा, असत्य को हरा दूंगा, अभिमान ना रखे, अपने आप को बड़ा ना माने, आपकी बात का कोई खंडन करता है उस पर क्रोधित या अप्रसन्न ना हो, जो कोई कहे उसके वचन को ध्यान से सुनकर कुछ असत्य भान हो उस अंश का खंडन करें, अगर सत्य है तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, स्वामी सेवक के संबंधों के ऊपर इतना सुंदर दृष्टांत दिया है। और एक बात मैं जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी, विवाह ना केवल छात्र जीवन बल्कि देखिए विवाह के पश्चात एक पुरुष और स्त्री का कैसा संबंध होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि वे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो और एक दूसरे की सेवा करें। कहीं भी यहाँ भी उन्होंने नारी को बिल्कुल समकक्ष जानकर, जैसे शिक्षा के लिए अधिकारी माना था वैसे ही बराबर अधिकार दिया है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात है, हाँ, दयानंद जी ने कहा कि जितने भी मनुष्य से भिन्न प्राणी हैं उनमें दो प्रकार का स्वभाव है, एक बलवान से डरना और दूसरा निर्बल को डराना। पीड़ा देखकर दूसरे के प्राण निकालकर अपना मतलब सिद्ध करना, ये दो प्रकार के व्यवहार। और कहते जो मनुष्य ऐसा स्वभाव रखता है उसको मनुष्य योनि में नहीं गिनना चाहिए। तो अगर हम, तो मैं यहाँ पर थोड़ा समअप करती हूँ। इस प्रकार स्वामी दयानंद जी ने व्यवहारिकता के धरातल पर शिक्षा को वह सार्थक रूप देने का प्रयास किया जो विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य एवं संवेदनाओं को विकसित कर सके। क्योंकि एकदम सब कुछ जब रुक गया, कोरोना जैसी महामारी आई, मनुष्य को प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए एकदम तत्पर होना पड़ा। और आज भी मैं कह सकती हूँ कि आत्मावलोकन के लिए शिक्षा सशक्त माध्यम है। यदि भारत का पुराना साहित्य एवं संस्कृति एक संचित निधि है, सत्यार्थ प्रकाश के रूप में चाहे ऋषि के अन्य ग्रंथों के रूप में, तो इस निधि को युवा वर्ग तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि शिक्षा का व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप जब दोनों हम विद्यार्थियों के आगे प्रस्तुत करेंगे तभी हम उनको एक संतुलित और एक उत्तम जीवन दे पाएंगे। धन्यवाद। Invite Brajesh Gautam to speak on Dayananda Paठ्यक्रम, please. नमस्ते जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, आपका वीडियो नहीं दिखाई देता बस। जी धन्यवाद। मैं दूसरी डिवाइस से बात कर रहा हूँ, वरुण सिंह की। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद सभी का मुझे यहाँ समय देने के लिए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, दयानंद चेयर और डॉक्टर आनंद कुमार जी के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं आज के इस दिन पूज्य श्री रतिराम शर्मा जी को, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आज उनका जन्मोत्सव है और वो गुरुकुल पद्धति, स्वामी दयानंद और आर्ष पाठविधि के परम प्रेमी रहे हैं। इस अवसर पर हम महर्षि दयानंद सरस्वती को विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य स्तर पर किस प्रकार पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। जहाँ तक इस संदर्भ में जो अब तक कार्य हुआ है दयानंद दर्शन पर, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्त मेरठ कॉलेज में थे, उन्होंने दयानंद दर्शन पर शोध किया, एक पुस्तक प्रकाशित है। डॉक्टर कुमुदिनी श्रीवास्तव, उनका ग्रंथ प्रकाशित है, रांची विश्वविद्यालय में वो दर्शन विभाग में थी। डॉक्टर आचार्य श्रीनिवास शास्त्री, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उनका भी दयानंद दर्शन पर ग्रंथ है। डॉक्टर रंजना सक्सेना जी, प्रयाग विश्वविद्यालय से 1997 में उन्होंने पीएचडी के लिए क्रिटिकल स्टडी ऑफ दयानंद फिलोसफी इस विषय पर शोध किया, हिंदी में उपलब्ध है, ई पुस्तकालय में मैंने पुस्तक ये देखी है। और आर्य समाज के बहुत बड़े लेखक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, उनका भी साहित्य दयानंद दर्शन पर प्राप्त होता है और डॉक्टर सत्यप्रकाश सरस्वती जी का साहित्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से दयानंद दर्शन की जब हम बात करेंगे, जो चर्चा चल रही है, ये पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं, संदर्भ ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपना जो पाठ्यक्रम है उस पर विचार कर सकते हैं। अब मैं युधिष्ठिर मीमांसक जी को भी उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने एक पुस्तक है मेरी दृष्टि में स्वामी दयानंद और उनके कार्य, वहाँ वो लिखते हैं, इस ग्रंथ में स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदोद्धार के विषय में ही लिखा है, क्योंकि मैं उनका यही कार्य प्रधान मानता हूँ। सन 1925 तक आर्य समाज स्वयं दयानंद को वेदों वाला कहता हुआ मानता था, तो इसमें इसी प्रकार से बातें हैं। लेकिन जो स्वामी दयानंद का दूसरा स्वरूप है, स्त्री सुधारक, समाज सुधारक, अछूतोद्धारक, गोरक्षक, आर्य भाषा, हिंदी प्रचारक, स्वतंत्रता का प्रचारक आदि रूप,
यदा कदा स्मरण किया जाता था। संप्रति दयानंद को इन्हीं विशेषणों से विशेषित किया जाता है। उसका प्रमुख वेदों वाला स्वरूप हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ऐसा मीमांसक जी का कहना है। अब ये सब चर्चाएं विद्वानों के बीच में चलती रही हैं। इन विषयों पर कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर रखे हैं आपके सामने, मैं उन्हें पढ़ना चाहूँगा कि यदि हम कोई पाठ्यक्रम बनाते हैं दयानंद दर्शन पर, तो उनमें जो हमारे परंपरागत शब्द हैं जिन पर हम प्रायः चर्चा करते हैं, उनको अंतर्भाव उनका रखते हुए कैसे किन प्रसंगों को हम यहाँ उद्धृत करें जिससे कि हम दयानंद दर्शन की बात कह सकें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य जो महाविद्यालयी संस्था हैं या विद्यालयी संस्था हैं उनमें हम दयानंद का प्रवेश करा सकें। यूनिट किस प्रकार बनाए, अभी यूजीसी ने जो सीबीसीएस का पाठ्यक्रम बनाया उसमें हम एक पाठ्यक्रम ऐसा प्रस्तुत कर सकते हैं जो अन्य विषयों के विद्यार्थी भी उसको एक क्रेडिट कोर्स के तौर पे हम स्वीकार कर सकते हैं। तो क्रेडिट कोर्स के लिए हमें कुछ पाठ्यक्रम के बिंदु बनाने पड़ेंगे। ये कार्यशाला का विषय है। सूचना के और एक तरह से हम उस विषय सूची को अपने सामने रखते हुए मैं उन कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा कि जैसे बाल मनोविज्ञान और शैशव से कैशोर्य तक देखभाल तथा इस आयु के समग्र विकास पर महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार और व्यवहार के लिए दृष्टि, ये पाठ्यक्रम द्वितीय समोल्लास पर आधारित होगा। हम सत्यार्थ प्रकाश या अन्य शब्दों के स्थान पर यहाँ बाल मनोविज्ञान और शैशव से कैशोर्य तक देखभाल इस विषय को रखेंगे, जो हमारे शिक्षण शास्त्र जो विषय है जहाँ अध्यापक शिक्षा होती है उसमें भी हम इसे सम्मिलित कर सकते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा समाज में उपयोगिता के अनुरूप जीवन पद्धति और महर्षि दयानंद के दृष्टिकोण और वैदिक वाङ्मय के आलोक में हम किस प्रकार इसे रख सकते हैं जो हमारी जीवन पद्धति है। सदाचार की परंपरागत अवधारणा और वैयक्तिक विकास के सूत्र महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी मौलिक व्याख्या। राज्य के नीति निर्धारक तत्व महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा भारत की परंपरा की अभिनव व्याख्या, शासन के लिए उपलब्ध स्रोत सामग्री का देशहित उपयोग, आत्मचेतना और मनुष्य के आंतरिक बोध के लिए संसार के रहस्यों की पहेली का महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार समाधान, मुक्ति और मानव जीवन के उद्देश्य की परख, प्राण शक्ति के लिए साधना और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आत्मोन्नति का बताया गया मार्ग, सरल और कठिन जीवन के चयन का स्वाभाविक अधिकार, आहार और स्वास्थ्य के चिरंतन नियम पर महर्षि दयानंद सरस्वती के समावेशी विचार, सामाजिक उन्नति के लिए शुद्ध आहार विहार और भेदभाव मुक्त सामाजिक जीवन की अवधारणा, वेद में अनित्य इतिहास की स्थापना का मूल मंत्र, आर्ष परंपरा का पुनर्मूल्यांकन, महर्षि दयानंद की विशिष्ट देन, वेद और वैदिक वाङ्मय को समझने की कुंजी, तर्क और उसकी प्रतिष्ठा, भारत की सामाजिक अवस्था में उपस्थित भिन्न भिन्न मत और उनकी परीक्षा, विवेक के उदय से वास्तविक बोध, मत संप्रदाय और धर्म की वास्तविक व्याख्या से आचरण की शुद्धता पर वैदिक दृष्टि, चाणक्य, शुक्र और विदुर, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा नीति ग्रंथों की सार्वकालिक उपयोगिता पर दृष्टि, वैदिक वाङ्मय की व्याख्या के मानक, वेद संहिता और आनुषंगिक साहित्य की धारा, आर्य और उनका आदिदेश, आर्यावर्त, भरतखंड, जम्बूद्वीप भारत, रामायण महाभारत काल और उसके बाद अब तक उपलब्ध इतिहास परंपरा, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के साथ स्वराज पर महर्षि दयानंद सरस्वती की अभिनव व्याख्या, विभिन्न प्रसंग और उनके जीवन से प्राप्त आदर्श, त्रयित और अन्य दार्शनिक मंतव्यों पर महर्षि दयानंद सरस्वती की स्थापना का विस्तृत फलक, महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि में मनुष्य का जीवन और उसके आदर्श, मानव जीवन के लिए उपयोगी अनुशासनबद्ध दिनचर्या, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत पंच कर्तव्यों का अनुपालन। यहाँ हम यज्ञ के स्थान पर पंच कर्तव्य का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इस पूरे जो मैंने सूची बनाई है विचार के लिए, कार्यशाला का विषय है, पुनः इस पर अलग से विचार हो, उसमें उन शब्दों का प्रयोग किया है जो सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, शैक्षणिक संस्थाओं में उपयोग कर सकते हैं। इसके आगे कुछ और बिंदु हैं। राजसत्ता के विभिन्न अंगों पर महर्षि दयानंद सरस्वती की प्राचीन और अर्वाचीन स्थापना में तुलनात्मक अध्ययन, वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य के विवेक में महर्षि दयानंद सरस्वती की समाज के सभी अंगों के लिए बताई गई सूक्ष्म और समाधान परक दृष्टि, समस्त कर्तव्यों का आदिमूल, महर्षि दयानंद सरस्वती की विशिष्ट शैली में समाधान। जैसे हम कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है, इसको हम अभिनव व्याख्या के साथ स्थापित कर सकते हैं। विभिन्न लेखकों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती के वैचारिक मंतव्यों को लेकर रचित साहित्य, सर्वेक्षण और मूल्यांकन, ये प्रायः होता रहा है, लेकिन इसका भी एक यूनिट में हम विषय रख सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए संगठनात्मक कार्य, उनकी प्रासंगिकता। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, प्रोटकानी सभा बनाई, गोकृषादि रक्षिणी सभा बनाई और अन्य भी संगठनों का उनका सहयोग रहा। तो आज के समय में सामयिक प्रासंगिक जो हम कर सकें तो संगठनात्मक दृष्टि से भी उनका जो विचार विमर्श था उसको हम एक यूनिट में रख सकते हैं। इन सभी विषयों को हम अंतर्भाव भी कर सकते हैं और पुनः एक दूसरे में मिला भी सकते हैं और नया भी एक संरचनात्मक रूप दे सकते हैं, जो विषय आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद द्वारा भाषा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि, देश की भाषाई समस्या और समाधान। एक बहुत बड़ा ही बहुत विचित्र एक बिंदु है कि देश में सभी अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, लेकिन
हम एक प्रतिष्ठा भाषा की नहीं कर पाए। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का वचन दिया था, घोषणा की थी और उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उसके समर्थन में भी लोग थे, लेकिन वो मान्य नहीं हुआ। इस पर हम दोबारा प्रयास कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा के लिए संस्कृत का स्थान सुनिश्चित करें और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करें। उत्तराधिकार और महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वीकार पत्र के संपत्ति और विरासत का घोषणा पत्र, बहुत विवाद होते हैं संपत्ति और उसके, तो स्वामी जी ने स्वीकार पत्र में कैसे लिखा उसको हम एक यूनिट के तौर पर विद्यार्थियों को बता सकते हैं और सामाजिक जो हमारे संगठन में जो विद्रूपता है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। सुमंता वेवंत प्रकाश के आलोक में महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांत पक्ष की पुनर्व्याख्या। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा पुनर्गठित पारिभाषिक शब्द चिंतन के नए आयाम, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो स्वामी जी ने स्वयं ही प्रयोग किए, पहले प्रयोग नहीं होते थे, चाहे आर्य भाषा में और संस्कृत में उनकी एक शैली है। और जो तत्वमीमांसा सृष्टि विद्या है जो ऋग्वेद आदि भाष्यकार अन्य ग्रंथों में प्राप्त होती है, वैदिक वांग्मय की व्याख्या में प्राप्त होती है, वेद मंत्रों की व्याख्या में प्राप्त होती है, आर्य विभिन्न में जो उनका स्तुति प्रार्थना उपासना का जो स्वरूप प्राप्त होता है उसको भी हम एक यूनिट का एक छोटा भाग बना सकते हैं। विवेक और आस्था का समन्वय, स्वामी जी ने विवेक को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा दिया, तर्क को दिया, तर्क को ऋषि माना गया, निरुक्त में तर्क को ऋषि की प्रतिष्ठा दी गई है। तो विवेक और आस्था का जो समन्वय है, पंच परीक्षा उनका परिपालन, ये हरिद्र शतमाला के आधार पर कुछ हम जो उनके शब्द हैं अब आप समाप्त करेंगे। बस 1 मिनट 30 सेकंड हो रहा है। व्यवहार के सूत्र, दृष्टांत और आख्यान, व्यवहार भानु जैसे भी चर्चा हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती न्यायिक है अथवा मीमांसक, ये विषय विद्वानों के लिए है कि वो ये तय करें वो मीमांसक मानते हैं, आप न्यायिक मानते हैं, अथवा दर्शन की जो षड्दर्शन समन्वय की जो परंपरा है उसको हम किस प्रकार यूनिट में सम्मिलित कर सकते हैं। तो गुरु और उनके निर्देशों का पालन, ब्रजानंद दयानंद की अद्भुत समझ जो विकसित हुई, इसको हम देख सकते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रत्यक्ष पढ़ाए गए विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति, राजा, सामंत, विद्यार्थी, सामान्य जन, तो एक ऐसी हम एक टीम का गठन करें, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और दयानंद चेयर डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आनंद प्रकाश जी और हम सब मिलके पुनः एक कार्यशाला केवल इसी विषय पर करें कि हम दयानंद दर्शन को किस रूप से, और मैंने लगभग ये 25 बिंदु आपके सामने रखे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी और गुरुकुल दोनों ही आंदोलन रहे। मैं समाप्त करना चाहूंगा, धन्यवाद आपका। और इन बिंदुओं को पीडीएफ रूप में डॉक्टर आनंद जी को मैंने भेजा है, इस पर विचार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते। पुनः पंडित धृतराज शर्मा जी के चरणों में नमन और उनकी स्मृति को प्रणाम। थैंक यू। दयानंद ग्रंथ और जीवनी भारतीयों के ऊपर प्रभाव, गोस्वामी प्रकाश कुमार धीर। गोस्वामी जी, is he there? How? Yes, carry on. Yes. मैं कैसे आप सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय पर आऊंगा अब। तो मेरा जो आज का विषय है, महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों और जीवन का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो एक समाज सुधारक थे, तो उनका जो परिचय है वो आगे हो गया होगा, लेकिन फिर भी मेरा जो विषय है उसके अनुसार मैं उनका शॉर्ट में परिचय दूंगा। तो भारतीय समाज सुधारकों में 2 प्रकार के समाज सुधारक हुए। जो एक ऐसे भी समाज सुधारक थे जो राजकीय कायदाकीय तौर पर, धाराधोरणों के तौर पर सामाजिक सुधार का उन्होंने प्रयास किया, जैसे कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक। तो दूसरे ऐसे भी समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीय समाज में जाकर, घर घर जाकर समाज सुधार का प्रयास किया, और उनमें महर्षि दयानंद सरस्वती एक प्रमुख नाम है। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में अगर देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। सौराष्ट्र प्रदेश का राजकोट जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम करसनदास त्रिवेदी और माता का नाम अमृत बहन था। और उनका मूल नाम जो बचपन का था, उनका नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती जब छोटे थे तब उनका विवाह करने का विचार उनके पिता को आया, और यह विचार उनको पसंद नहीं आया और वह अपने घर से गृह त्याग करते हुए वह सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में वो निकल गए। महर्षि दयानंद सरस्वती
पहले टंकारा से सायला, सायला के बाद सिद्धपुर, सिद्धपुर के बाद नर्मदा के तट पर चाणोद जो नगर था, जो वहां जाकर उन्होंने गुरु पूर्णानंद के पास से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और तब से उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती प्रचलित हुआ। फिर भी ईश्वर की और जो साक्षात्कार की जो उनकी जो मन की इच्छा थी, वह उनको मथुरा में गुरु विरजानंद के पास ले गई और गुरु विरजानंद के पास जाकर उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप का और विविध विद्याओं का परिचय प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो प्रमुख कार्य किए उनमें से जो महत्व के जो कार्य थे उनमें से सामाजिक भेदभावों को समाप्त करना और समाज में स्त्रियों को एक गौरवान्वित स्थान प्रदान करना, उसके बाद धर्म के नाम पर जो चल रहे जो पाखंड थे उनको समाप्त करना और साथ ही साथ भारतीय प्राचीन शास्त्रों का पठन पाठन करके वैदिक धर्म में धर्म का जो विचार थे उनको उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया था। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने जो भारतीय समाज की जो सेवा की, भारतीय समाज की जो समाज सुधारणा की जो सेवा की, उसके बाद उन्होंने जो अपने विचार प्रकट करते हुए कुछ साहित्य सर्जन भी किया और उसमें से सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि जैसे अनेक उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए ग्रंथों का निर्माण किया। तो सत्यार्थ प्रकाश जो उनका जो प्रमुख ग्रंथ है, जो भारतीय समाज में एक चेतना का संचार करने वाला प्रमुख ग्रंथ माना गया है। उन्होंने भारतीय समाज में जो बदिया थी उनको समाप्त करने के लिए और भारतीय और हिंदू शास्त्रों को एक तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करने का उन्होंने प्रयास किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर का सच्चा स्वरूप कैसा होना चाहिए या मूर्ति या कोई प्रतीकों के स्थान पर ईश्वर एक सर्वव्यापी और निराकार है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया था। साथ ही साथ उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था जो भारतीय समाज में थी वो जन्म के आधार पर नहीं होकर वह कर्म के आधार पर होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। साथ ही साथ उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए और जीव, प्रकृति, परमात्मा आदि विषयों पर उन्होंने अपना विचार प्रकट इस ग्रंथ में किए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो विचार अपने ग्रंथों के द्वारा भारतीय समाज में प्रकट किए हैं उसके ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं भारतीय शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ बिंदु मैंने एकत्र किए हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कार्य किया है भारतीय समाज के लिए वो बहुत ही प्रेरणादायी और नोंदपात्र है, जिनमें एक कार्य उनका ये भी है कि भारतीय जो संस्कृति, जो सभ्यता थी और भारतीय जो संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो विदेशी लोग भारतीय संस्कृति का जो गलत अर्थघटन करके उसका मजाक उड़ा रहे थे, तभी दयानंद सरस्वती ने उस भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप प्रकट करने का प्रयास किया था। तो भारतीय शिक्षा में दयानंद सरस्वती के विचारों का जो प्रभाव पड़ा उनमें महत्व की जो बातें हैं, तो एक है स्वदेशी शिक्षा को सुदृढ़ करके उस पर जोर देना। तो स्वदेशी शिक्षा यानी कि जो भारतीय वेद है, पुराण है, जो साहित्य है, भारतीय प्राचीन साहित्य है, उसमें जो बातें रखी गई थी उसका एक सही अर्थघटन करके उन्होंने भारतीय जो शिक्षा है उसमें उसको प्रेरित किया।
उसके बाद उनका भारतीय शिक्षा पर उनके जो विचार है उसमें एक विचार महत्व का ये भी है कि भारतीय शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने। तो भारतीय समाज में जो उस समय जो स्त्री शिक्षा का उतना कोई प्रभाव नहीं था, उस समय उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अपने विचार प्रकट किए थे और स्त्रियों को जो शिक्षित करने का जो विचार है उनको। उसके बाद भारतीय शिक्षा में अंधश्रद्धा की जगह धर्म का सच्चा स्वरूप का उन्होंने परिचय देने का प्रयास किया था। तो भारतीय उस समय मानो जो विचार थे, अंधश्रद्धा थे, जैसे कि शेष नाग के मस्तक पर पृथ्वी टिकी हुई है, तो ऐसे जो अनलॉजिकल जो विचार थे उनके स्थान पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक तार्किक दृष्टिकोण से भारतीय शिक्षा में भारतीय शास्त्र को रखने का प्रयास किया था। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने विदेशी और मात्र भौतिक शिक्षा के स्थान पर आध्यात्मिक विकास हो सके व्यक्ति का, ऐसी शिक्षा का जो उन्होंने जो हिमायत की थी और जो सही में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास का एक सच्चा प्रयास होगा, जो आध्यात्मिक शिक्षा जो आज हम नहीं शिक्षा प्रणाली में हम कम देखते हैं, तो उसका भी उन्होंने विचार किया था। उसके बाद वैदिक शिक्षा और जो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद नैतिक शिक्षा पर विशेष बल, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने नैतिक शिक्षा जो है और सभी देश के सभी नागरिकों में नैतिकता का जो मूल्य है उसका संचार हो सके, ऐसी नैतिक शिक्षा की भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने मातृभाषा और संस्कृत के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को शिक्षा को माध्यम बनाने की भी उन्होंने बात की थी। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिक्षक अथवा या शिक्षा में समर्पित एक शिक्षक की महत्व की जो भूमिका होती है उसके ऊपर भी उन्होंने विचार प्रकट किए थे कि शिक्षक जो होता है वह अपने छात्रों और अपने भावी जो देश है, भावी जो छात्र है उनके लिए प्रेरणादायी होता है। तो शिक्षक का चारित्र भी एक अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे थे। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो भारतीय समाज की जो सेवा की है उसके लिए सारा देश उनका ऋणी रहेगा। और मुझे जो समय मिला है उसमें जो मैंने एक प्रयास किया है, रिसर्च पेपर तो मैं इसको नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैंने एक प्रयास किया है और आप सभी के समक्ष रखा है, तो जो गलती है तो उनको माफ करना और मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद. Thank you. Now I invite our honorable chairperson of the session, one of the leading Sanskrit scholars of India and the Chancellor of the Rajendra Prasad Central University, Bihar, Professor Prafulla Mishra, to deliver his chairperson's address. Professor Mishra. Esteemed Professor Ravi Prakash ji and the valuable guest from Suriname, Dr. Dev Chandra Bose Sharma, and other participants, Pragyan ji, Dr. Hema Lata Solanki, Anamika, Rajesh Gupta, Gautam, and Goswami Prakash Kumar Dhi. All of them have touched different aspects of Swami Dayananda's educational system. Well, I would like to say something which is very much relevant for the system, because Sri Aurobindo remarks gives a very good ovation to Swami Dayananda Saraswati as the most important Veda Bhasyakar. Well,
his contention is on the basis of Veda and Veda and Veda, no other thing. And accordingly, he has accepted the Vedic culture as the sole way of life, and the explanations on the basis of internal evidence of Brahmana, Aranyaka, Upanishad and Nirukta. Well, there are all misinterpretations happened after many lapses of many time in the flow of time, and the Western critics or Western commentators, they have in a way topsy-turvied. They made something right side up on the explanation of the Veda, because they don't belong to, many people don't belong to the Vedic tradition. They don't understand. As a result of which the Krinvanta Vishwamaryam or Vedokira Dharma Muram, these dictum, they don't understand. That's why Swami Dayananda followers, Swami Dayananda was in a very critical time to save Hinduism in northern states and northwestern states, where many people are against the worship of image or the icon worships. That's why he said Natasya Pratima Asti. So this argument he developed, and his arguments in the Satyartha Prakasa in 2 volumes, we find that is accepting his interpretation on the Veda Bhashya, Bhumika. This is the magnum opus in which he explained whole of his explanation for the followers, for his the theory of teaching and the way of life, the ideal way of life of Indians. Because he said, first we should be Arya, then we make others Arya. If you don't make, if you are not Aryas, how can we make others Arya? That's why there are different dimensions of this stuff. Our friends have said many things, and many important things they have seen. There is Swadeshi Shiksha. Mr. Goswami Prakash said about that. And equalized. He has equalized with Raja Rammohn Rai much. Then please don't do that mistake, because Raja Rammohn Rai was not a social. He is not a visionary. He is not a Rishi. He was just a politician, and he was mixed with the British people, and he was promoting Christianity in the guise of Arya Samaj, in the guise of Brahmo Samaj. That's why in northern eastern states people have become Christians because of Brahmo Samaj. It's a very pathetic scene. So Dayananda Saraswati is much higher, a great seer for this country to revive our culture for the whole world. Another thing is that his stress on Matrubhasha and Sanskrit Bhasha, we have forgotten, because nowhere in the world people read in a foreign language. Of course, I am telling because Professor Arya said me, Ravi Bhai told me to speak in English for others. Otherwise, I am at home in Sanskrit. That would be better for me. Yeah. Anyway, so the medium of instruction everywhere I have seen in Europe or in Asian other countries, Japan, etc. Very difficult language. They have 40,000 pictographs in Chinese, in Mandarin, and they teach them, and they do everything in that. So that is that because they have kept their own language, they have kept their own science and technology, then they develop on that. We have become Chinnamula. We are very, Indians are very brilliant people, but they don't have their roots now. They have now becoming, day by day, they are away from their roots. That is the most dangerous things. So, while making the study, Swami Dayananda Ji Maharaj and his followers, because I was attending regularly the Arya Samaj rituals and everything, I am part of it in Bhubaneswar, Arya Samaj. So I know
that the Gurukulas, I have visited Gurukula Jhajjar and many Gurukulas. So the Gurukulas are his place of experiments and the best place of experiments. So now whatever I visualize, whatever I say, my experience as a teacher for last so many decades, and I have experience of from KG to PG, from different university, from different faculty. So I find that the Indian message should have that spirit. Even if it is a university, university limits our knowledge. You see, Gurukula system expands the vistas, prepares a man for his future. And he says that Vyavaharika Jnana, that's how that knowledge will be utilized in this life, because our people na ghar ki ho na ghat ki ho jo bolte hain. They like that. When people comes from university, they come from university, they are good for nothing. That's why again they have to undergo some skill development. Now government is doing that skill. We had our skill development in our villages, village artisans. They have assured our profession. So when the modern profession comes, you have to adopt that modern professions. So this is another one thing, that the Gurukulas be strengthened. And if at all this country will flourish in the model of a Gurukula and in a developed form of a Gurukula, if our knowledge is expanded in that Gurukula format, that will make India prosperity, make perspective. Another thing is that, very important thing, when our friends presented the paper of course of study and different types of syllabus and many things, there one important thing is that the micro study is necessary. The study of Dayananda on Nyaya Vaisheshika, the study on Yoga Shastra, because why I was teaching Hatha Yoga Pradipika for so many days to yoga students. So also Yoga Sutra and Hatha Yoga Pradipika we were teaching. But why Swamiji don't like to teach Hatha Yoga Pradipika, I don't know. So for this, we need micro study. We need micro study of Vyakarana, because I have seen in Gurukula Amsena in Odisha, the very good Gurukula. I have visited it for the purpose of Government of India grant. So there I saw they are teaching Vyakarana in the format of Kasika style. So Kasika style they are teaching. So that is very good format, which I understand, because from the children of 15 to 16 years, they apply in the format of Kasika Vritti and read Kasika and then Ashtadhyayi. So Ashtadhyayi, Kasika, this format is good format. So we must develop in the universities also. We are reading Siddhanta Kaumudi and doing all our exercises and breaking our head. We do not know the system of grammar, which is very clearly said in Ashtadhyayi and also in Kasikas. And even the examples of Kasikas are pragmatic. So pragmatic way. So similarly, the micro study, and another thing is the yajna, the science of sacrifice. Science of sacrifice is a simplified way of Vedic yajna by Swami Dayananda. Because in our days, if you go for Sautramani, it is not so easy to go for Sautramani, or Jyotishthoma, or Vajapaya, or Aswamedha. And they are very elaborate. As a student of Vedic Kalpa Sutras, when I study them and I am teaching them, the elaborate way of practicing of sacrifice is very significantly simplified, so that all can practice it. The other day, in another international seminar, one friend from Mauritius was telling
that Mauritius people have practiced yajna every day. So some people there, they belong to Gayatri family or Arya Samaj family, and they perform sacrifice every day. And being inspired, others have also practiced sacrifice so that Mauritius is free from corona infection. So it is a sacrifice nowadays. People understand that whatever Dayananda Saraswati was telling and whatever the Gurukula was practicing, that is now are compulsorily thrust upon the people of the world, because it is said by Manu, etad desha prasutasya sakasa dagra janmana swam swam charitram shiksheran prithivyam sarvamanava. So the way of speaking, the way of living, the way of addressing, everything, if food, our food is also accepted. If you take food of our own, which is even prescribed by Swamiji. Swamiji has prescribed everything, has left no stone unturned for the brahmacharis. And brahmacharya ashrama, somebody told about brahmacharya ashrama, some of our speaker, and there also it is very important that brahmacharya ashrama is very strict. Sanjama Katora, H.L. Solanki. Solanki also stressed on brahmacharya ashrama. Are we going to assure it with our children? We are not assuring this with our children. We are supplying all sorts of comfort to them to read. And all the classrooms nowadays are air conditioned. The bus is air conditioned. The hostel is air conditioned. So how can the brahmacharya ashrama will go? So in this manner, what I understand that this seminar very, very effective. And another suggestion by Anamika is the social life. She is speaking on the social life. Social life, political life, how that will be harmonious. Now we are in a better form than the time of Dayananda Saraswati ji. At that time was nothing was very much available with people. Nowadays we are getting everything, but we are not in peace. We are not in happiness. Veda bestows, the education provides happiness, pleasure. Man makes man happy, but how? Because if he develops internal happiness, that is the iota of the contention of Rigveda Bhasya Bhumika also refutes all the opinions, previous opinions, and present his own opinion. The Jainas, the Buddhas, the Vedantins, all their opinions are refuted. So the students who read Dayananda, they must, those who are reading Vedanta should know the opinion of Vedanta, how Dayananda refutes Vedanta, and to what extent is relevant, because Dayananda is a seer. Similarly, the Nayayikas and the Nayaka, he says that Jagadisha Sabda Sakti Prakasha should not be read. Why he said? Because the arguments should be examined. So in this way, I would like to suggest that while making research and study on Dayananda, we should make micro study, we should make macro study and a synthetic study, so that Dayananda will be properly expanded. Not only in Dayananda universities, but also in the general universities, in the general colleges, where there is no Dayananda chair. In a common forum also, they need to be studied, so that, because nowadays it is the time to revive our study of our country, so that we can make progress. You see, in China, I have seen how China is growing. China is sold the Ayurvedic medicine. Their Chinese medicine is sold in very big shops, and they are preparing the medicine. But we are making Ayurveda, we are making Sanskrit second-rate people in our country. You see how Ayurveda is alternative medicine.
and the so-called allopathic medicine is the real mainstream. Ayurveda is the alternative medicine. This is the misfortune of our country. When we know ourselves, Jatha Vayam Rashtra Jagruyama Purohitaha. That means we go ahead. We are the forerunners. We have to revive our country with the help of the Vedic knowledge. Then only our country will prosper. Then only our country will have Parama Vaibhavasali. Otherwise, we'll be lagging behind. We'll be in second rate from them. Now I congratulate all the paper readers. Congratulate Dr. Ravi to organize such a beautiful seminar in this evening. Thank you all. Vande Mataram, Bharat Mata ki jai. Thank you, Professor Mishra. It was a very illuminating and full of suggestions. The speech was very enlightening. In fact, he just stressed upon two things. When some research is done, it should be, the stress should be on micro study and synthetic study, so that the Dayananda's vision can be properly expanded. And he also highlighted so many things on Maharshi Dayananda, and he told us that we should not do comparison between this Raja Ram Mohan Rai or Vidyasagar, between Swami Dayananda. They were not seers and he was a seer. So it was a very path-breaking speech, and a good guidance was given for the future research scholars in this speech. I hope all the paper presenters and the participants of this conference will surely be benefited by this enlightening speech by a very towering scholar, a Sanskrit scholar. And let me also inform Professor Mishra is also a Sanskrit poet. He writes so many poetries in Sanskrit. Once when I met him in some university in Odisha, then he gifted me one of his books. So that was about, I think, some river, some poem on a river. Yeah, you are muted. That is Kushabhadra River. Yes, Kushabhadra River. So he's a very good scholar. So I thought to invite him as a chief session chair during this conference, and I was lucky that he readily agreed. He didn't make any, his formalities or so. He readily agrees. So I am very much thankful to Professor Mishra to concede to my request immediately and enlighten us in this conference. Now, we are going to start our next session. Next session, plenary session. For the next plenary session, we have the chairperson in Professor Sadashiva Dwivedi from Banaras Hindu University. And our co-chair is Dr. Komal Chandra Radhakishun, CSK, Mauritius. Dr. Radhakishun is the third civilian prize winner from Mauritius, and he is a Ayurvedic doctor. But he takes a lot of interest in all Vedic and academic activities. So I invite Dr. Komal Chandra Radhakishun to introduce the chair of the second session, Professor Sadashiva Dwivedi, so that this session may be started. Dr. Komal Chandra Radhakishun. आप सभी को नमस्ते, and I thank Ravi Prakash Arya ji, the chairman of Maharshi Dayanand Saraswati Chair, Maharshi Dayanand University, Rohtak. I will have the pleasure now to give the introduction of the today's second plenary session chairman, Professor Sadashiv Dwivedi from Banaras Hindu University. He is a leading specialist of Sanskrit literature and poetics at one of the premier seats of Sanskrit learning in the world. Over 26 years of teaching and research experience at two central universities, namely Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University,
with over 2,000 students taught at graduate and postgraduate level. 15 PhD research scholars awarded degree, and under 5 under guidance, a multilingual author and editor of 20 major publications covering World Index of Kalidas Literature, anthology of 40 treatises on Sanskrit poetics under the title Sahitya Shastra Samuchay, criticism of poetry, critical edition of encyclopedic work of Bhojraj Sri Gangara Prakash, and translation winning public and academic acclaim. 75 research papers, articles, and books chapters, and 80 national and international seminar presentation. Leader of 3 major research projects in Sanskrit literature at BHU and Kalidas Sansthan, Varanasi. A versatile academic with first-hand experience in academic administration and departmental at university level, honored with Bhoj Puraskar, Vikram Kalidas Puraskar, and many others from various institutions. A multi-gold medalist, first-class student of literary fundamentals under the leading scholars of modern times, including his father, Mahamahopadhyay, Professor Rewa Prasad Dwivedi, Sanatana. Now I have the pleasure to pass on Ravi Prakash Arya, and there will be the first speaker of this session. Yes, now Professor Dwivedi will call the speakers and start his session. Okay, to Professor Dwivedi. Yeah. सभी विद्वानों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं. Professor Arya, I don't have the list of the speakers with me. ओहो, मैंने आपको भेजा था. चलिए राधा कृष्ण जी, you can announce the speakers then. Yes, if Professor Radhakrishnan has the list, he may announce, he may continue. Okay. So Radha Krishnan ji, you have the list? Or no problem, I will announce. The first speaker is Dr. Jasuben M. Pramar, Sarkari Vinayan Mahavidyalay Utshal, Tapi, Gujarat. So Jasuben Parmar. Hello, Ravi Prakash ji. Yes, Radha Krishnan ji, I was saying you have the list of the speakers. Yes, I have the list of speakers. Okay, then you can invite them. Jasuben Pramar, I don't think she is available. So you invite the second speaker. You invite the second speaker then. Dr. Jasuben M. Parmar, Sarkari. No, she is not available. I think she is not visible here. So, there is Dr. Jyoti K. Bhatt, Department of Sanskrit, Sri V.M. Sakaria Mahila Arts College, Batod, Gujarat. And she will speak, I think he will speak on contemporary education system and Satya Prakash. There is another speaker, Kanta Soni, Shodharthit Hindi Vibhag, Than Vishwavidyalaya, Jaipur. And I think he will be speaker on Hindi Sahitya mein Swami Dayanand Saraswati ke granthon ka pathan. And the last speaker will be Vikram Shekhawat. He will speak on Satyarth Prakash or Adhunik Shiksha. These are the speakers, and I think if the speakers Jyoti K. Bhatt, if Jyoti K. Bhatt is there, she's not seen. Okay, Kanta Soni. Yeah, she's there. Kanta Soni, आप start कीजिए. जी सर, सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम. मैं कांता सोनी राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधार्थी हूँ और मेरा विषय है हिंदी साहित्य में स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों का पठन पाठन. हिंदी की उन्नति और विकास में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान वरदान की तरह हिंदी को मिला.
यद्यपि उन्होंने अन्य हिंदी निर्माताओं की तरह एक सृजक की भूमिका नहीं निभाई। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी विपुल मौलिक सृजनात्मक संपदा हिंदी साहित्य को नहीं सौंपी, लेकिन एक सुधारक, चिंतक और विचारक की भूमिका में उनके तेजस्वी और निर्भीक व्यक्तित्व ने अपने भाषणों और लेखनी से हिंदी भाषा को अभूतपूर्व शक्ति और सामर्थ्य दी। हिंदी के विकास में उस क्रम में जब उसका स्वरूप निश्चित नहीं था, जब वह संस्कृत और उर्दू से दबी हुई थी, उस समय स्वामी जी ने जनता के मानस में गहरे अंतर प्रवेश करने वाली भाषा को ढूंढ निकाला। व्यंग विनोद से युक्त कहावतों, मुहावरों से संपन्न उपयुक्त भाषा शैली तलाश कर हिंदी गद्य को उन्होंने सहज, संप्रेषणीय और प्राणवान स्वरूप प्रदान किया। उनकी हिंदी सेवा और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव तत्कालीन हिंदी साहित्य जगत पर ही नहीं, बल्कि उनके निधन के कई वर्षों बाद रचे जाने वाले साहित्य पर भी पड़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वामी जी के प्रभावकारी हस्तक्षेप को श्री रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां बखूबी निर्धारित करती है। रीतिकाल के ठीक बाद उनके काल में हिंदी साहित्य क्षेत्र में जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना घटी, वह थी स्वामी दयानंद का पवित्रतावादी प्रचार। इस पवित्रतावादी प्रचार से घबराकर द्विवेदी युगीन कविगण नारी की कामनीय रूप से आंखें चुराने लगे। इस युग के कवियों को श्रृंगार की कविता लिखते समय यह प्रतीत होता था कि जैसे स्वामी दयानंद पास ही में खड़े सब कुछ देख रहे हों। इस भय से छायावादी कवि भी प्रत्यक्ष नारी के बदले जूही की कली अथवा विहंगियों का आश्रय लेकर अपने भावों को रचने लगे थे। स्वामी जी ने हिंदी साहित्य सृजन की दृष्टि से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक भले ही ना लिखे हों, लेकिन धर्म प्रचार का और आर्य समाज के उद्देश्यों, सिद्धांतों और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया, उससे कई अर्थों में हिंदी को बढ़ाया। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी के उन प्रारंभिक ग्रंथों में माना है जिसके गद्य की शैली के बाद में सभी ने परंपरा के रूप में ग्रहण किया। सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशन से पहले हिंदी गद्य की भाषा ब्रज भाषा और अवधी से बहुत अधिक प्रभावित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में माना है कि 1868 से 1893 का कालखंड हिंदी गद्य के विकास का समय था। डॉक्टर चंद्रभानु सीताराम सोनवले ने हिंदी गद्य साहित्य में लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश आधुनिक हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। हिंदी को नई चाल में ढालने में स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र से कम नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और दयानंद सरस्वती दोनों का योगदान अप्रतिम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कार्य क्षेत्र साहित्यिक था, जबकि दयानंद का कार्य क्षेत्र विस्तृत था। ऋषि दयानंद सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा में वेदों का भाष्य करके हिंदी भाषा को महिमा मंडित किया। अपने समय में सबसे अधिक व्याख्यान देने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। आर्य समाज जैसी संस्था को स्थापित करके हिंदी भाषा को अहिंदी भाषित प्रदेशों में पहुंचाकर हिंदी को जन जन की भाषा बनाया। हिंदी गद्य के स्वरूप निर्धारण तथा हिंदी भाषा के स्वरूप निर्धारण में ऋषि दयानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदी भाषा से संबंधित दयानंद सरस्वती की अपनी एक अलग विशेषता रही है। संस्कृत के पंडित होने के कारण उन्होंने तत्सम शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। उर्दू और फारसी के प्रभाव से हिंदी भाषा का स्वरूप दबता जा रहा था। ऐसे समय में ऋषि दयानंद ने भारतीय भाषाओं के मूल स्वरूप संस्कृत के महत्व को पहचान कर तत्सम शब्दों के चयन की नीति अपनाई। आज हिंदी जिस तत्सम प्रधान शब्दावली से समृद्ध है, उसके प्रोद्धा दयानंद सरस्वती ही थे। उन्होंने हिंदी के लिए सर्वत्र आर्य भाषा शब्द का प्रयोग किया। इसके पीछे उनका लक्ष्य हिंदी को समग्र आर्यव्रत की एकमात्र प्रधान भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करना था। दयानंद सरस्वती की भाषा शैली पर गुजराती, ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी भाषा में आवश्यकता अनुसार ग्रामीण व लोक प्रचलित शब्दों का व्यवहार भी मिलता है।
प्रसंग के अनुसार कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। उनकी भाषा में मुहावरों कहावतों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इससे उनकी भाषा में ओजस्विता तथा प्रभावोत्पकता भी बढ़ गई है। ऋषि दयानंद ने आर्य, आर्यव्रत तथा नमस्ते जैसे नए शब्दों को देकर भाषा को अधिक समृद्ध किया। उनकी भाषा ओज से भरी हुई है। इसके अतिरिक्त सरलता, सुबोधता, चित्रात्मकता दयानंद सरस्वती के लेखन की अभिव्यक्ति शैली की प्रमुख विशेषता है। संस्कृत से जुड़े होने के कारण ऋषि दयानंद के साहित्य से हिंदी भाषा में शब्द समृद्धि हुई है। उनके पास शब्दों की विशाल संपदा थी। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम उल्माल में ईश्वर के नामों की व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है। खड़ी बोली हिंदी के शैशव काल में ऋषि दयानंद ने हिंदी को सरल, ओजस्वी, सशक्त और प्रभावशाली तो बनाया ही, साथ ही उसे रोचकता और लचीलापन भी प्रदान किया। उन्होंने भाषा को निखरते रूप प्राणवंत भी बनाया। वेदी युगीन अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू शिव पूजन सहाय, गोपाल राम गहमरी, बाल मुकुंद, लाला भगवान दीन आदि सभी की भाषा पर दयानंद सरस्वती की भाषा तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। भाषा के साथ साथ हिंदी गद्य की शैली पर भी दयानंद सरस्वती का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदी गद्य रचना में ऋषि दयानंद की अपनी व्यक्तिगत शैली रही है। विविध शैलियों के विवेचन में उन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। उनकी शैली मुख्य रूप से दार्शनिक शैली रही है। जिसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सूत्रात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली तथा मूल्यांकन शैली का भी प्रयोग किया है। उनकी शैली तर्कपूर्ण एवं गौरवपूर्ण है। दयानंद सरस्वती के शैली में व्यंग विनोद है। जिसके माध्यम से उन्होंने अपने कथन को रोचक और प्रभावक बनाया है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम समोल्लास में इस शैली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। आज स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षणिक विचारों के गहन तथा सूक्ष्मतम अध्ययन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उनके ग्रंथों पर शोध एवं पठन पाठन हेतु स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से स्वामी दयानंद सरस्वती शोध पीठ की स्थापना 2016 में की गई, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत मानी जाने वाली विभूतियों में ही नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी निर्माताओं में स्वामी दयानंद का नाम हमेशा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने हिंदी गद्य की शक्ति को बढ़ाकर सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा के भवन निर्माण की बुनियाद रखी। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे जो अगले वक्ता हैं जिन्होंने पेपर प्रेजेंट करना, वो है विक्रम शेखावत। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। मैं एक स्नातकोत्तर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर का विद्यार्थी हूं और मैं अपने सहपाठी अनामिका और शीतल नारा के समक्ष अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। मेरी प्रस्तुति का विषय है सत्यार्थ प्रकाश और आधुनिक शिक्षा। मुख्य शब्द हैं शिक्षा, विषय, वेद, स्त्री शिक्षा और ब्रह्मचर्य। मेरी प्रस्तुति है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और सन 1875 में स्वामी जी ने हिंदी में इसकी रचना की। उदयपुर में लिखा गया यह ग्रंथ अपने आप में एक काफी इसमें परिकल्पना है और कालजयी ग्रंथ है। इसमें स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा, ब्रह्मचर्य, आधुनिक शिक्षा सभी पे खूब जोर और इसमें निहित वेदों का ज्ञान, शिक्षा के प्रति समर्पण, स्त्री शिक्षा व एकता का भाव,
समाज को उत्थान की ओर अग्रसित करता है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, अर्थात सही अर्थ पर प्रकाश डालता है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदू शास्त्रों की गहनता, आधुनिकता, अत्याधुनिकता, दूरदृष्टिता व काल्पनिकता का एक अंश है, जिसने समाज में उत्पन्न आडंबरों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विरोध किया तथा तीसरे समोल्लास में निहित शिक्षा का प्रावधान, स्त्री शिक्षा, उच्च शिक्षा का प्रदान करना ग्रंथ की व्यापकता को दर्शाता है। आधुनिक शिक्षा के स्तंभ द्रविड़ एंग्लो विद्यालय आर्य समाज की ही देन है, जो स्वामी जी दयानंद जी के विचारों पर आधारित है। उच्च शिक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और वेदों में भी प्रमाण है कि स्त्री शिक्षा का महत्व समाज के लिए कितना आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मचर्य के पालन को भी काफी नीतिबद्ध दिया गया है, कैसे कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पर वश करके अपने गुणों को उजागर कर सकता है। मेरी प्रस्तुति में हमारा उद्देश्य है सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा और ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण करें, वेदों और ग्रंथों के का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वेदों में दी गई शिक्षा आज के युग में कैसे सहायक है, स्त्री शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें और क्यों दें, और ध्यान को केंद्रित करना किसी भी कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुसंधान क्रियाविधि, मैंने जो पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है उसका स्रोत स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश से अजमेर में प्रकाशित हुई। यह आधार सामग्री प्राथमिक स्तरों पर आधारित है और कुछ संदर्भ पुस्तकों का भी इसमें योगदान है। आधुनिक युग में वेद ग्रंथों को शामिल किया गया है तथा कुछ स्रोत इंटरनेट से भी लिए गए हैं। अथ तृतीय समोल्लासारम अध्यापन निधि व्याख्यासम अर्थात तीसरे समोल्लास में पढ़ाने में संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा और स्वभाव रूपी आभूषणों का दान धारण कराना माता पिता, आचार्य संबंधियों का मुख्य कर्म है। स्वामी जी कहते हैं, सोने चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि रत्नों से युक्त आभूषणों से धारण करने से केवल बाहरी आवरण की सुंदरता व्यक्त होती है, परंतु जो हमारे अंत है उसका निचोड़ केवल शिक्षा से ही है। और स्वामी जी कहते हैं कि देहाभिमान और विषय शक्ति और चोर आदि भय तथा मृत्यु भी संभव है, जो समाज में ऐसे उदाहरणों का साक्षी है। स्वामी जी ने इस कन्यानाम संप्रदानम च कुमारानाम च रक्षणम से अभिप्राय है कि इसमें राज नियम, जाति नियम होना चाहिए। 5वें तथा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़के पुत्र और पुत्रियों को घर में न रखकर पाठशाला में अवश्य भेजने का प्रावधान होना चाहिए तथा जो व्यक्ति अपने बाल बालिकाओं को इस अधिकार से वंचित रखे वह समाज में दंड का आभारी हो। इस प्रथम यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरे पाठशाला में आचार्य कुल में हो। माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को गायत्री मंत्र का उपदेश दें। जो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका तरह सर्वरक्षक, प्राणदाता, दुखहर्ता, सुखहर्ता, उस संसार के उत्पत्तिकर्ता के वर्ण करने योग्य शुद्ध स्वरूप देव का अर्थात ईश्वर को धारण करें, जो बुद्धि को प्रेरित करें अर्थात सन्मार्ग पर चलाएं। स्वामी जी ने वेदों में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया है। जो व्यक्ति वेदों को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के उनका अर्थ नहीं जानता, वह जीवन में भारवा के प्रति बोझ तले दबता चला जाता है, और जो वेद का अध्ययन करता है उनका यथावत अर्थ जानता है, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति सुनते हुए नहीं सुनता, देखते हुए नहीं देखता, वह अविद्वानों की श्रेणी में आता है, अर्थात अविद्वान लोग इस विद्या रूपी रहस्य से अनभिज्ञ रहते हैं। जो शब्द अर्थ संबंध को जानने वाला है, उसके लिए विद्या जैसा सुंदर वस्त्र आभूषण धारती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे ही विद्या विद्वानों तथा विद्वतियों के लिए अपना स्वरूप प्रकाश करती है, अविद्वानों के लिए नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा विषय पे अत्यंत प्रकाश डाला गया है तथा अध्यय पाठन विधि अब पढ़ने पढ़ाने के प्रकार लिखे हैं। प्रथम
पाणिनि मुनिकृत शिक्षा जो एक सूत्र रूप है, उसकी रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह कारण है, जिसे पै उसका ओष्ठ स्थान है, स्पर्श प्रयत्न और प्राण तथा जीव की क्रिया करना कर्ण कहलाता है। इसी प्रकार यथा योग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता व आचार्य सिखाते हैं। शिक्षा विषय में ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जिनके हर एक विद्यार्थी को हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे सुंदर पुस्तकों में इसकी गिनती है। इसमें 8 अध्याय हैं तथा इसको 1 वर्ष 6 माह में पढ़ा जा सकता है। महाभाष्य ग्रंथों की श्रेणी में अष्टाध्यायी के बाद महाभाष्य का भी पाठन होना चाहिए। यह भी 1 वर्ष और 6 माह में पढ़ी जा सकती है। महाभाष्य और अष्टाध्यायी आर्ष ग्रंथ में पढ़ने जाने चाहिए। आर्ष ग्रंथ ऋषि मुनि कृत ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं। ये ग्रंथ पढ़ने में सुगम और ग्रहण करने में थोड़ा समय कम लगता है। आर्ष ग्रंथ का पढ़ना ऐसा है जैसे ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने। छंदो ग्रंथ से वैदिक लौकिक छंदों का ज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति बताई गई है तथा इसको पढ़ने में 4 माह का समय लगता है। इसका चौथे क्रम में मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण। स्त्री शिक्षा, स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा पे भी काफी प्रयत्न और काफी प्रोत्साहित किया है कि स्त्री सुदो न ध्यायत मति श्रुतो, सब स्त्री व पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार दोनों पुरुष और को प्राप्त है, स्त्री और पुरुष को प्राप्त है। सबको वेद पढ़ने व सुनने का अधिकार है। इसका प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा ग्रंथ है, मंत्र है। यथेमा वाच्य कल्याणी माकदानी जनेभ्य ब्रह्मजन्याभ्यच शूद्राय चार्य व स्वाय चारणे। ईश्वर कहते हैं कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देनहारी ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे हर मनुष्य को इनका उपदेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य कन्याओं युवाओं प्रतिम, युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य का भी पाठ इसमें दिया गया है। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य